Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 10, The Beggar. This is the 10th chapter of Movements. As you know from the name, we can see beggar everywhere on the public places like temples, bus stands, railway stations. We can see and we are also familiar with their looks. They are wearing rugged clothes or this is also the story of a beggar. First of all, students, I want to discuss with you. We have seen that a number of people they become beggar just because of their willingness, because we can see that they are healthy enough that they can do the work anywhere, they can find the work anywhere, but some people they just develop a habit just to beg and earn their bread. These type of people become beggar just because of their willingness. But there are some other kind of people who become beggar due to circumstances. So this is a story about a beggar which is having the similar condition or the similar situation that we have just discussed now. The story is about a beggar who just moves from one place to another, making excuses to the people for begging. Somewhere it says that he was a teacher and he was expelled out of the school because of the intrigues. And somewhere he just makes the excuses that he was a student, so that's why there was some sort of problem due to some circumstances he was just expelled out from his school. So when he makes such kind of excuses, तो people जो लोग हैं they just have sympathy on him and they give money to him. So this is his daily routine. And actually this beggar in reality is a drunkard person who is very much addicted to alcohol. One day this beggar just roams here and there on a street, and he just saying to the people just to have pity on him and making the excuse and saying that he was a teacher and because of the intrigues और षड्यंत्रों की वजह से he was just expelled out of fired out of his position, so that's why he's not having any work to do. And he has now got the post in some province, but now he is not having the money to go. A man who was standing nearby was watching this person and was just trying to recognize this beggar. He was just watching this beggar and thinking that he may have seen this person earlier also. Then when he just looked on his fawn coat and his red eyes, which were drunkard eyes, which had become red due to the overdosage of alcohol, so then he finally recognized that he is that beggar whom he had just seen one day before in some other street. Then he just point out that beggar कि I have seen you earlier. तुम वही बेगर हो ना जो पहले तो मुझे बोल रहे थे, तुम तो पहले कह रहे थे कि मैं एक स्टूडेंट था और तुम्हें बाहर निकाल दिया गया था, और आज तुम बोल रहे हो कि मैं एक टीचर था और मुझे षड्यंत्रों की वजह से निकाल दिया गया. तो ये सभी चीज़ें सुन के व्हेन दिस बेगर जस्ट सी दैट कि इस बंदे ने मुझे रिकग्नाइज कर लिया है, तो ही इज़ जस्ट टेकन अबैक. ये बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि इसने तो मुझे पहचान लिया है. ये बहुत कोशिश करता है झूठ दोबारा बोलने की कि नो आई वॉज अ टीचर ये वो, लेकिन जो ये सरगई है, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ एन एडवोकेट एंड हिज नेम इज़ सरगई, तो वो उसको बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो और मैं तुम्हें अभी पुलिस के पास भेज दूंगा. तो ये बैगर जो है ये चीज़ से डर के देन उसे अपनी असलियत बताता है कि एक्चुअली ही वॉज अ
ही वॉज इन द रशियन कॉयर, वो किसी बैंड म्यूजिशियन बैंड में था, और उसकी पीने की आदत के कारण, हैबिट के कारण उसे उस बैंड में से निकाल दिया गया। तो अभी अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो मुझे कोई भी पैसे नहीं देगा। तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज सेइंग व्हाट कैन आई डू सर। मुझे, ठीक है, तो ये बोल रहा है मुझे शर्म तो आती है मेरे पे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे कोई भी पैसे नहीं देगा। तो ये जो सरगई है ये बोलता है तुम कहते हो कि मैं क्या करूं, तुम काम कर सकते हो। और तभी जो सरगई है वो उसको कहता है कि क्या तुम मेरे घर में वुड चॉपिंग का काम करोगे। और देन ये बैगर एकदम से एनोनिमसली बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है यस। तो तभी जो सरगई है इसको अपने घर ले जाता है और उसे अपने घर में काम देने के लिए सोचता है। जैसे वो घर जाता है सरगई, तो वो अपने कुक ओल्गा को बुलाता है कि वो इस बेगर को, इस पर्सन को वुड चॉपिंग का काम दे, वुड शेड में ले जा। अब ये ओल्गा जो है बहुत ही गुस्से वाली लेडी है और ये इस बेगर को ये आगे आगे चलती है। और ये बैगर जो है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही पी कर इसकी बॉडी बहुत अनहेल्दी हो चुकी है, और ही इज़ वीक वेरी मच दैट ही कांट डू एनी टाइप ऑफ हार्ड वर्क। आपको पता ही है कि वुड चॉपिंग का वर्क जो है बहुत ही हार्ड वर्क है, ये बहुत ही हैवी वर्क है। लेकिन ये जो पर्सन है उसने अपने आप को पी कर इतना ड्रंकर्ड बना लिया है कि अब ही इज़ नॉट एबल टू डू द वर्क। तो ओल्गा के पीछे पीछे वो चलता है बहुत ही अनविलिंगली, क्योंकि वो खुद ही अपने वर्ड्स के साथ से ट्रैप हो चुका है। उसने ऐसे ही शर्मिंदा होने की वजह से बचने के लिए उसे सरगई को यस तो बोल दिया, लेकिन असल में ही इज़ नॉट हैविंग एनी इंक्लिनेशन जस्ट टू डू दिस हार्ड वर्क बिकॉज हिज बॉडी इज़ नॉट हेल्दी इनफ टू डू दिस। सो ओल्गा उसको शेड में वुड शेड में लेके जाती है और उसको काम देती है कि तुम इस काम को करो। और ओल्गा बहुत ही गुस्से में है। तो ये सभी चीज़ें जो सरगई है वो अपनी किचन में से देख रहा होता है कि जो बेगर है वो सच में अब काम करने लग गया है, क्योंकि वुड शेड में मतलब जो है उसको लगता है कि वो काम करने लग गया है, ठीक है, वुड चॉपिंग का। और 1 घंटे के बाद ही ओल्गा आती है और उसको बताती है कि जो वुड चॉपिंग जो है हो चुकी है। और तो सरगई बहुत खुश होता है कि सच में उसने इस बंदे को काम के लिए अगर बोला है तो ये काम करने लग गया है। और ऐसे ही वो इस जो बेगर है उसको बोलता है कि वो हर मंथ जो है उसके फर्स्ट डे पर आ सकता है और कोई ना कोई वर्क उसे दिया जाएगा, और मतलब जो भी वो वर्क करेगा उसके उसको पैसे भी दिए जाएंगे। तो इसी तरह से जो लशकॉफ है वो डेली नहीं, हर मंथ के फर्स्ट दिन पर वो जो बेगर है वो अपीयर हो जाता है उनके सरगई के घर, और उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढा जाता है और उसको उसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं। तो कभी तो सरगई वुड चॉपिंग का काम करता है, कभी मतलब कोई और काम करता है बेगर आके। और सरगई इन चीज़ों को देख के बहुत खुश होता है कि उसने एक बेगर को अच्छे रास्ते पर डाला। तो लेट्स सी इन दिस चैप्टर, क्या सच में वो सरगई ही था जिसके वजह से जो वो बेगर है, क्या उसमें कोई चेंज आता है? वो इतना बॉडी से वीक है, क्या वो ऐसे वुड चॉपिंग जैसा इतना हार्ड मैनुअल वर्क अपने आप करता है, या फिर कोई और करता है, या फिर उसमें कोई चेंज आता है या नहीं? लेट्स सी इन दिस चैप्टर।